Good morning students. We have already started our chapter heredity and evolution. So last time we discussed about some of the basic things about heredity and evolution. Today we are going to discuss about one person that has played a very important role in understanding heredity. Name of the person is Gregor Johann Mendel, and he is also the father of genetics. So we are going to discuss about the contribution of Mendel in understanding the principle of inheritance. So let's discuss. His name was Gregor Johann Mendel. He was born in 1822 and he died in 1884. He was belonging to a very poor family, and the main study area of his study was mathematics. He was a mathematician. वो biologist नहीं थे, वो mathematician थे, but he was having a interest in hybridization. उनका इंटरेस्ट था प्लांट्स में फंक्शन करने के लिए, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में फंक्शन करने के लिए. दैट्स वाई ही चोज्ड वन प्लांट and performed hybridization experiments. That plant that was chosen by Gregor Johann Mendel was Pisum sativum. That is garden pea. So Mendel ने garden pea पर function काम किया. He performed hybridization experiments on garden pea and tried to study the inheritance pattern of different characters. So he performed different hybridization experiments to understand inheritance pattern. Now he was successful in managing his hybridization experiments, and he also published his experiments in a paper, in a journal. But at that time we were not knowing about DNA, chromosomes, genes. उस टाइम पे इन चीज़ों के बारे में कोई नहीं जानता था, इसलिए मेंडल ने जो लोगों को बताया, they were not accepting those things. वो सबकी समझ से बाहर था, because he was working beyond time. इसलिए मेंडल के काम को रिजेक्ट कर दिया गया and he died in 1884. तब तक उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. उसके बाद in 1900 three scientists were working on the same thing. So in 1900 three scientists were working on same hybridization experiments. These three scientists were Shermack, Hugo de Vries and Carl Correns. So when they were working, they find out that the results that were shown by Mendel were true. They have find out those results that were given by Mendel. So they republished work of Mendel after 1900, because of which Mendel work was recognized, and then he was credited as father of genetics. So after death of Mendel, he was credited by this title, father of genetics. Now let's discuss about the things that were done by Mendel. Actually में Mendel ने क्या किया था? So what were the strategies of Mendel and the reason why Mendel have chosen this Pisum sativum? So let's start with the thing that what was the reason behind this, that Mendel chose this plant. So first reason for selection of Pisum sativum is it is very easy to grow Pisum sativum. गार्डन पी को ग्रो करना बहुत इजी है, इजी टू ग्रो, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग की या केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अनदर थिंग इज इट इज़ हैविंग वेरी लेस ग्रोइंग टाइम. तो एक साल में हमें 2 या 3 जनरेशन्स मिल जाती हैं स्टडी करने के लिए. सो दैट इज़ वन
more reason for choosing this garden pea. So there is short life cycle, and because of this short life cycle, more generations can easily be studied. Another thing is, important one is that Pisum sativum is going to show contrasting characters. Pisum sativum में ज़्यादातर contrasting characters present हैं which are very easy to distinguish. What do we understand by contrasting characters? Characters का मतलब है traits, characteristics, like height of a plant is a characteristic, color of flower is a characteristic. So there are lots of characteristics. Seed color is a characteristic. So Pisum sativum की जितनी भी characteristics थी उनको हम देख के easily distinguish कर सकते थे. जैसे if I am going to talk about height, so height of some plants were very tall and height of some plants were very short, or you can say dwarf. So there was a clear cut difference in the height of the plant. Tall plant was extremely tall and short plant was very small. So we can easily distinguish between a tall and a short plant. If you talk about the color of a flower, so either the flowers were violet or they were white. Both are contrasting colors which can easily be distinguished. Seed color, it were yellow or green. So जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको हम easily देखकर distinguish कर सकते थे. That's why we are saying using the word contrasting character. तो मेंडल के लिए easy था different type के plants को select करके एक side रखना because they were showing different characters, and इन plants को separate करके एक side रखना because दोनों ही characters different contrasting characters थे. That's why he chose Pisum sativum. Next reason for choosing of Pisum sativum is that it is going to produce bisexual flowers. Both male and female reproductive parts are present in one single flower. एक ही flower पर male और female reproductive part present है. That means there are more chances of self pollination. Self pollination के chances ज़्यादा हैं because pollen grains are present in that flower and stigma is also present in that flower only. So यहाँ पर जितने भी characters थे वो आपने आपको हर एक generation में express कर रहे थे because self pollination was possible. ऐसा नहीं था कि मेंडल ने अपने hybridizing experiments में सिर्फ self pollination को use किया था. He also performed cross pollination. उसने क्रॉस पॉलिनेशन भी परफॉर्म किया था. एंड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन he used the technique that is emasculation. What emasculation is? फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के मैच्योर होने से पहले the male reproductive part is being removed, cut off. That means stamen will be removed from the flower before maturation. तो बचेगा क्या? सिर्फ only female reproductive part will be left behind, so that will convert into a unisexual flower, or simply that will have a female reproductive part only. That is known as emasculation. So emasculation is removal of male reproductive part from the flower before its maturation. अब बचा क्या है? ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैज लेफ्ट बिहाइंड. सो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर गोइंग टू बी 0 क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑलरेडी रिमूव हो गया है. बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ अनवांटेड पॉलिनेशन. अगर फ्लावर ओपन रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी पॉलन ग्रेन लाई कर सकता है एंड फर्टिलाइजेशन विल बी पॉसिबल. सो मेंडल यूज्ड अनदर टेक्निक टू remove this chance of unwanted pollination, and that was bagging. उसके लिए मेंडल ने क्या किया?
बैगिंग को यूज़ किया। बैगिंग सिंपली मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव करने के बाद ही कवर्ड द फ्लावर विद अ प्लास्टिक बैग, उसने फ्लावर को एक बैग के साथ कवर कर दिया, सो दैट एनी अनवांटेड pollen grain is not going to lie on the female reproductive part. So he covered emasculated flowers to prevent unwanted pollination. So by these two techniques he performed cross pollination in Pisum sativum. Although there were bisexual flowers, still he managed to perform cross pollination. Another thing was about Pisum sativum is that each time, in each generation, it was going to produce lots of seeds. हर generation में वो बहुत सारे large number of seeds were produced. अगर हमारे पास बहुत सारे seeds मिल रहे हैं, so we are having more material for study, so that was easy for Mendel. Another thing was handling is easy, that is not very costly. Pisum sativum को grow करना is not very costly, handling is easy. So these were some other reasons because of which Mendel selected Pisum sativum. So these were the main reasons. Now let's talk about the experimental strategy. What was the strategy that was performed by Mendel? And one more thing you need to know कि Pisum sativum में Mendel chose 7 contrasting characters. He worked on 7 contrasting कैरेक्टर्स. उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया और उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे दे वर ऑन द बेसिस ऑफ दीज 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. सो आई एम गोइंग टू शो अ टेबुलर फॉर्म ऑफ दीज 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. These are the 7 characters that were studied by Mendel. See, I have written the characters over here. And over here I have written the contrasting character, means that they are either present in the dominant form or they are present in the recessive form. Suppose I am talking about the first character, that is plant height. Mendel ने अपने experiment में plant की height को control किया. If we talk about the height of a pea plant, garden pea plant, तो हमें garden pea plant में 2 height देखने को मिलती हैं. या तो गार्डन पी प्लांट इज टॉल इन हाइट या वो हाइट में ड्वार्फ है, शॉर्ट है. सो 2 कैरेक्टर्स हैं, तो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर देयर. वन सिंगल कैरेक्टर इज देयर विथ 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. आइदर द प्लांट इज टॉल और द प्लांट इज ड्वार्फ. नाउ वी से दैट टॉल इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फ इज अ रिसेसिव वन. डोमिनेंट कैरेक्टर जो ज़्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, दैट वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, वो हमें हर एक जनरेशन में देखने को मिलेगा. एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स विद टॉल हाइट विल बी मोर. रिसेसिव इज गोइंग टू बी seen in less plants. We will see when we are going to talk about the experiment. So second was position of the flower. या तो फ्लावर एक्सियली स्टेम के बिल्कुल एक्सियल पार्ट पे प्रेजेंट थे, ठीक है, साइड्स में प्रेजेंट थे, या वो टर्मिनल रीजन पर प्रेजेंट थे. अगर एक्सियली प्रेजेंट है दैट इज अ डोमिनेंट वन एंड टर्मिनल रिसेसिव. नेक्स्ट वन वाज कलर ऑफ पोड. ग्रीन वन वाज डोमिनेंट एंड येलो वाज रिसेसिव. शेप ऑफ द पोड inflated, the dominant character, and constricted recessive one. Same shape of the seed, round is dominant over wrinkled, and color of the seed yellow is dominant over green, and color of the flower violet is dominant over white. So these were the 7 characters that were studied by Mendel in his hybridization experiments. Now let's talk about the strategy, technique of Mendel's experiment. Here we will
understand about dominant and recessive thing. So Mendel's, we will see its Mendel's experimental techniques. How he proceeded his experiments. So सबसे पहले मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले मेंडल ने जो फर्स्ट जनरेशन ली अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो पहली जनरेशन कंसीडर की, दैट वाज द पेरेंट जनरेशन जिससे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, एंड दिस पेरेंट प्लांट्स वर प्योर लाइन प्लांट्स. सो ही सिलेक्टेड प्योर लाइन प्लांट्स for his hybridization experiment. अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने प्योर लाइन प्लांट्स को सिलेक्ट किया. What do we understand by this pure line plant? Say I am simply taking an example and make you understand by this example. Suppose this is a homologous chromosome. So I have made a pair of homologous chromosomes. So I already told you the gene that is present on this chromosome exactly is the same gene is going to lie on this chromosome. Suppose we are considering the height of the plant. हम कौन से जीन को कंसिडर कर रहे हैं? प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है. सो यहाँ पर जो जीन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कंट्रोलिंग हाइट ऑफ द प्लांट. एग्जैक्टली इसके होमोलोगस पेयर पे यहाँ जो जीन प्रेजेंट होगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल द हाइट ऑफ द प्लांट. बट हेयर 3 different situations are present. That means either here the gene for tall height of the plant is present. इसका जो homologous pair है वहाँ पर भी जो जीन है वो tall height के लिए responsible है. This is the homozygous. If I am writing capital T is used for dominant character. Dominant character को हम हमेशा capital alphabet से show करते हैं. So this is a homozygous डोमिनेंट सिचुएशन. ये होमोजाइगस डोमिनेंट सिचुएशन है. सेकेंड सिचुएशन कैन बी होमोलोगस पेयर पे अगेन हाइट को ही कंसीडर कर रहे हैं. वन जीन इज डोमिनेंट फॉर द हाइट एंड सेकेंड वन इज रिसेसिव. रिसेसिव को हम स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. दोनों ही हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं. एक टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ड्वार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो 2 different genes, they are 2 different alleles that are present. So here we are using the word, it is heterozygous. लेकिन heterozygous होने के साथ साथ ये क्या है? डोमिनेंट है. Why? रीजन, क्योंकि जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ प्रेजेंट होंगे तो हमेशा एक्सप्रेशन किसका आएगा? डोमिनेंट का आएगा. दिस डोमिनेंट इज गोइंग टू सप्रेस द एक्शन ऑफ दिस रिसेसिव कैरेक्टर. सो ऑलवेज इन दिस सिचुएशन देयर विल बी डोमिनेंट कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. तो इस प्लांट की हाइट क्या होगी? बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल हाइट है. सो हाइट ऑफ द प्लांट विल बी टॉल. हेयर ऑल्सो height of the plant will be tall. थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? थर्ड सिचुएशन इज यहाँ पर जो दोनों जीन्स हाइट को कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे हैं? दोनों ही रिसेसिव हैं. दोनों ही मैंने स्मॉल अल्फाबेट से शो किए हैं. सो बोथ आर रिसेसिव. दिस इज द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. होमोजाइगस इसलिए क्योंकि दोनों सेम हैं लेकिन दोनों कैसे हैं? रिसेसिव हैं. तो स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ड्वार्फ हाइट के लिए. सो हाइट ऑफ द प्लांट विल बी ड्वार्फ. दीज 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो सिंपली जब हमने हाइट को कंट्रोल किया तो हाइट के लिए वी डिस्कस्ड अबाउट 2 अलील्स. ये एक ही जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं. वो एक जैसी भी हो सकती हैं, डोमिनेंट हो सकती हैं दोनों, या वो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकती है, या वो दोनों रिसेसिव हो सकती हैं. सो हाइट ऑफ द प्लांट देयर इज कैपिटल T दैट इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल हाइट. दूसरा जो अलील है इस जीन का
दैट इज रिसेसिव, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डॉर्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, दोनों टी एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों ही टी प्रेजेंट है तो टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉल हाइट के लिए, तो प्लांट की हाइट हमेशा क्या होगी, टॉल। एक डोमिनेंट टी और एक दूसरा रिसेसिव टी प्रेजेंट हो सकता है, वन कैपिटल वन स्मॉल, लेकिन there is a law of dominance, a law was given, that was law of dominance, और law of dominance क्या कहता है कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव अलील एक साथ प्रेजेंट हैं तो हमेशा एक्सप्रेशन किसका आएगा, डोमिनेंट का आएगा, डोमिनेंट रिसेसिव के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है। तो यहाँ पर इस हेट्रोजाइगस सिचुएशन में हाइट क्या होगी, टॉल होगी, और अगर होमोजाइगस रिसेसिव है, टॉल हाइट के लिए अलील प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली हाइट कैसी होगी, डॉर्फ होगी। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब इनमें से प्योर लाइन प्लांट्स कौन से हैं, प्योर लाइन प्लांट्स हमेशा कैसे होते हैं, प्योर लाइन प्लांट्स आर ऑलवेज होमोजाइगस, आइदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और इट इज होमोजाइगस रिसेसिव। हम उसको प्योर लाइन प्लांट क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके पास दोनों ही अलील्स एक जैसे हैं, और जब भी हम इन प्लांट्स को क्रॉस करेंगे, अगर हम कैपिटल टी, एक प्लांट कैपिटल टी है, हम इसको एक दूसरे प्लांट जो कि ऐसा ही जीनोटाइप कैरी करता है उसको क्रॉस करेंगे, तो नया प्लांट हमेशा कैसा मिलेगा हमें, यहाँ से भी जो गैमीट आएंगे दे विल बी हैविंग कैपिटल टी, यहाँ से भी जो गैमीट आएंगे वो कैसे आएंगे, कैपिटल टी वाले आएंगे। फ्यूज़न के बाद क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद वापस से यही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इन प्लांट्स को जब हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, व्हेन होमोजाइगस प्लांट्स आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव, दे अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन, इन ईच जनरेशन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद देयर ओन टाइप्स। ये प्लांट हमेशा टॉल प्लांट, हम इसको 100 जनरेशन्स तक भी ग्रो कर ले, यहाँ से हमेशा कैसा प्लांट मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा। अगर हम इस प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करते हैं देन इट इज ऑलवेज गिविंग राइज टू डॉर्फ प्लांट। तो उन प्लांट्स को हम प्योर लाइन प्लांट्स बोलते हैं जो हमेशा हर जनरेशन में अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इस प्लांट को हाइब्रिडाइज करवाएं, सेल्फ पॉलिनेट करवाएं, तो यहाँ से हमें दोनों तरह के प्लांट्स मिल जाएंगे। वी आर गोइंग टू गेट बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स, डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव। वी विल सी इन क्रॉसेस, जब हम क्रॉसेस की बात करेंगे हाउ दैट इज हैपनिंग, बट हेयर यू आर गोइंग टू गेट बोथ टॉल एज वेल एज डॉर्फ प्लांट। इसलिए इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम प्योर लाइन नहीं बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि हमारे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स में जो स्टार्टिंग प्लांट्स होंगे वो या तो डोमिनेंट होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, या वो होमोजाइगस रिसेसिव होंगे, हेट्रोजाइगस नहीं होंगे। दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस थिंग। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज डन बाय मेंडल। उसने प्योर लाइन प्लांट्स को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। सेकेंड थिंग ही डिड इज, प्योर लाइन प्लांट्स में he performed cross pollination. He performed cross pollination in pure line plants. सेल्फ पॉलिनेशन नहीं की, और वी नो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए उन्होंने क्या यूज किया, इमेस्कुलेशन किया, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिमूव कर दिया और बैगिंग कर दी, कवर कर दिया फ्लावर को। फिर जो उनके रिक्वायर्ड पॉलन ग्रेन्स थे उनको स्प्रे किया और पॉलिनेशन करवाया। तो इनमें प्योर लाइन प्लांट्स में जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा, और जो नई जनरेशन हमें मिलेगी, यहाँ से हमें ये पेरेंट्स हैं, वी आर कंसिडरिंग दीज पेरेंट्स, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ और उनसे जो जनरेशन आई दैट इज फर्स्ट जनरेशन। वो कैसी है, वो हमारी फर्स्ट जनरेशन है एक्सपेरिमेंट की, और इस फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, और वी यूज द टर्म सिंपली F1 जनरेशन। शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल दिस जनरेशन एज F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और कैसे मिली है ये, बाय क्रॉस पॉलिनेशन इन पेरेंट प्लांट्स और प्योर लाइन प्लांट्स। And secondly what he did, now अब जो F1 जनरेशन मिली है
उस F1 जनरेशन में ही परफॉर्म्ड सेल्फ पॉलिनेशन, जो F1 के मेंबर्स थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और उससे जो नई जनरेशन मिली दैट वाज द सेकंड जनरेशन. सो सेल्फ पॉलिनेशन इन मेंबर्स ऑफ F1 जनरेशन, यहाँ से जो प्लांट्स मिले उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और नेक्स्ट जो जनरेशन प्रोड्यूस हुई दैट वाज सेकंड जनरेशन, और यू कैन से सेकंड फीलियल जनरेशन. और F2 जनरेशन. दिस इज हाउ ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट. ये उनकी स्ट्रेटजीज थी. नाउ कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या किया, एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर को अपने कैलकुलेशंस में इंक्लूड किया. सपोज ही वॉज टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ द प्लांट, तो प्लांट में तो सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं बट ही ओनली फोकस्ड ऑन वन सिंगल कैरेक्टर दैट वाज हाइट ऑफ द प्लांट. और कैलकुलेशंस में सिर्फ प्लांट की हाइट को कैलकुलेट किया, टॉल प्लांट्स को एक साथ रख दिया और डॉल प्लांट्स को एक साथ रख दिया. सो ये जस्ट कैलकुलेटेड अपॉन द हाइट ऑफ द प्लांट. सो उन क्रॉसेस को, उन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को जिनमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को इन्वॉल्व किया जाता है, वी कॉल दोज एक्सपेरिमेंट्स एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So these are the crosses in which only one single contrasting trait is considered. And the second one is dihybrid. So Mendel also performed dihybrid crosses in which in one single experiment he discussed about two characters. उन्होंने एक साथ दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया. So mono means one and di means two. One character is considered at a time or two characters are considered at a time. This is giving us monohybrid or dihybrid cross. So next time we are going to discuss the Mendel's monohybrid as well as dihybrid cross.